Today we will discuss the chapter motion. What is motion? Motion is the change in position of an object with respect to time and reference point. That means, let us assume a person standing at a point O. That means the name of the person is S. S is standing at point O and observing a car, that the car or bus, okay, the bus was initially at point A. S observed that the bus was initially at the point A, and S also have a watch with him. So he noticed that after 2 seconds, the bus had changed its position and moved to the point, say B. Then the person S can conclude from his observation that the bus is in motion. That means कोई भी चीज मोशन में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे बस इनिशियली किस पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था, लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड द बस हैज मूव टू द पॉइंट बी. So from this observation we can conclude that the object or the bus was in motion. और मोशन के लिए और दूसरा एक फैक्टर जो मैटर करता है वो है रेफरेंस पॉइंट. कैसे मैटर करता है, जैसे देखो, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. लेट अस assume that this is earth and this is our sun. Earth is revolving around the sun, that means earth is in motion. लेकिन ये जो मोशन है वो हमें दिखाई नहीं देता. मैं इधर खड़ा हूँ और तुम भी मान लो इधर खड़े हो, लेकिन मैं तुमको रेस्ट में दिखूंगा. तुम हो, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड में रिवॉल्व ही कर रहे हैं. लेकिन कोई एक बंदा अगर इस पॉइंट पे खड़ा होके हमें देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि हम मोशन में हैं, हम गोल गोल घूम रहे हैं. सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. द रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन ऑब्जर्व द थिंग्स. दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस. Our next topic is types of motion. There are different types of motion. First one is linear motion. Linear motion or motion in a straight line. Let us assume a straight path or straight road, and a car is moving along the straight path. Then the motion of the car will be said टू बी लिनियर मोशन. सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, देन द मोशन इज कॉल्ड लिनियर मोशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. And number two is circular motion. Circular motion means, let us assume a circular path. So this is a path, its shape is circular, and an object is moving along this circular path, then its motion will be called circular motion. Motion in a circular path. That type of motion is called circular motion. And number three is oscillatory motion. What is oscillatory motion? अगर हम एक पेंडुलम ले, किसी भी वॉल में फिक्स करके, ये हमारा पेंडुलम ले लिया, उसके बाद पेंडुलम को हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में खींच दिया. दैट मीन्स अब पेंडुलम कहाँ आ गया, इधर आ गया. And after that, if we release the pendulum, it will move to its initial point first, then it will go to a certain distance like this. Again, he will move to its initial position and move to this point. This type of motion is called oscillatory motion and also known as to and fro motion. To and fro motion. Example of circular motion will be the revolving of earth around the sun. जैसे ये sun है और ये हमारा earth है. Earth is revolving around the sun in a circular path. That motion will be called circular motion. And oscillatory motion का example क्या हो जाएगा, motion of a pendulum.
द नंबर 4 इज रोटेशनल मोशन। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? जैसे हमारा अर्थ क्या होता है, खुद के एक्सिस में भी घूमता रहता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मोशन अलोंग इट्स ओन एक्सिस, मोशन along its own एक्सिस। और अर्थ के इस मोशन के वजह से हमें क्या मिलता है, दिन और रात मिलता है। डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? मान मान लेते हैं कोई भी एक रास्ता है ऐसा, let us assume that this is our point A and this is our point B। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कार है, जो A से B तक जाएगा। कौन से रास्ते से जाएगा? ये वाला रास्ते से जाएगा। तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, वो जितना टोटल पाथ कवर्ड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? द टोटल path traveled by an object. And what is displacement? Basically, displacement is also a distance, but it is different one. तो क्या हुआ था, ये हमारा रास्ता था ए से बी तक का। This is our point A and this is our point B. So what will be the displacement, or what is displacement? Displacement is the shortest distance between initial point and the final point. So let us assume that the object has started its journey from position A and moves to the point B. So what will be its shortest distance? The shortest distance will be the straight line joining the points A and B। सो A से B तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन वाला हो। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट विल बी द definition of displacement? It is the shortest distance between initial point and the final point। What is initial point? The point from which the object starts its journey. And what is final point? The point at which the object ends its journey। और और इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? द स्ट्रेट लाइन joining the points। This will be its displacement। Next, another one, number 2, distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू एंड नो डायरेक्शन। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता और मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज में क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड भी रहेगा। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, और उसके साथ साथ क्या रहेगा? डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 5 न्यूटन फोर्स लगाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। जैसे देखो ए से बी तक गया था, इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली डायरेक्शन बोल सकते हैं। ऐसे कहाँ से कहा जाए? मान लो इधर ईस्ट है और इस तरफ है वेस्ट। सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बट डिस्टेंस में क्या होगा? उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। एक बार ये इस तरफ जा रहा है, उसके बाद इस तरफ जा रहा है, उसके बाद इस तरफ जा रहा है, तो उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। दैट्स वाई
we can say that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. और scalar quantity क्या होता है? The quantities which have only magnitude but no direction. Such quantities are called scalar quantity. And what are vector quantities? The quantities which have both magnitude and direction. Such quantities are called vector quantity. Next, जो हमारा सिंबल्स है, डिस्टेंस को भी हम डिनोट करते हैं एस से, डिनोटेड बाय एस। एंड डिस्प्लेसमेंट को भी हम किससे डिनोट करते हैं? एस से ही डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस। दोनों को हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद यूनिट, अगर ऐसा यूनिट देखे, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर। इस एक्टिविटी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट था या फिर पर्सन था जो इनिशियली किस पॉइंट पे था? 0 मीटर पे। मान लो ये पॉइंट है ए पॉइंट। सो ऑब्जेक्ट वाज एट इनिशियली एट ए एंड ही हैज मूव टू ए पॉइंट बी, दैट मींस दिस वन। सो ऑब्जेक्ट ने ए से कहाँ तक आया? बी तक आया। In this case, if we see what will be the total distance traveled by the person, it will be 0 to 30 meter. That means distance will be 30 meter. कहाँ से कहाँ तक? ए से कहाँ गया? बी तक गया। उसके बाद हम अगर इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट निकाले, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. So the person's initial point was this one and the final point is this one. And what is the shortest distance between initial point and the final point? It is again 30 meters. So in this case, we found that the distance and displacement is equal. Let us assume that the object has moved from A to, let's say, C, this one. ये पर्सन ए से कहाँ आ गया? सी तक आ गया, मोशन फ्रॉम ए टू सी। अब अगर टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है ये? ए से कहाँ गया? सी तक गया। दैट मीन्स 0 से लेके कहाँ तक ट्रेवल किया? 70 मीटर तक ट्रेवल किया। दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस विल बी अगेन 70 मीटर. And what will be the displacement? Again, it is our initial point and this is our final point, and the shortest distance between A and C is again 70 meter. That means displacement will be also 70 meter. So इन दोनों केस में क्या हो रहा था? हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था? इक्वल आ रहा था। जैसे इधर 30 मीटर डिस्टेंस आया और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया? 30 मीटर ही आया। अब अगर और एक मोशन देखें, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ए से सी तक गया था, उसके बाद सी से वापस कोई भी एक पॉइंट मान लो इधर तक आया, डी तक आया, A to C and C to D. In this case, if we see the total distance, what will be the total distance? पहले वो कहाँ से कहाँ गया? A से C तक गया. That means कितना total distance कवर किया इसने? 70 मीटर. उसके बाद देखो ये रिटर्न हो रहा है, कितना डिस्टेंस रिटर्न किया? पहले 70 से लेके 60 आया, दैट मीन्स इधर 10 मीटर हो गया एक्स्ट्रा। उसके बाद 60 से लेके कहाँ आया? 50 तक आया, दैट मीन्स इधर भी 10 मीटर एक्स्ट्रा। तो उसने एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल किया रिटर्न जर्नी में? 10 प्लस 10 विच विल बी 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 90 मीटर। अब इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट इज आवर ए एंड द फाइनल पॉइंट इज डी, और ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0 से लेके 50 तक. दैट मीन्स इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट विच इज ए एंड द फाइनल पॉइंट विच इज डी. So we can say that the displacement will be 50 मीटर. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना?
उसके बाद मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है पहले ए से कहा गया सी तक गया, उसके बाद अगेन वो घूम के कहा आ गया ए पॉइंट पे आ गया। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट पहले ए से कहा गया, सी तक गया और सी से घूम फिर से कहा आ गया वो ए पॉइंट पे आ गया। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले ए से कहा गया सी तक गया, दैट मीन्स कितना टोटल पाथ और टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 70 मीटर। उसके बाद ये सी से अगेन ए तक आया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है अगेन आते वक्त 70 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 140 मीटर। In this case, if we say what will be its displacement? What is displacement again? The shortest distance between the initial point and the final point. अब इसमें इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी? ए पॉइंट से स्टार्ट किया था। ये घूम के पूरा जर्नी घूम के सी तक गया, उसके बाद सी से फिर घूम घूम के कहाँ आ गया ये? ए पॉइंट पे आ गया है कि दैट मीन्स ए पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी सॉरी जीरो। सो हम इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं? देखो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, जितना ये ट्रेवल करता है उतना बढ़ता हुआ जाता है। जैसे ए से बी तक गया था पहले, कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 मीटर। उसके बाद ए से सी गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 70। उसके बाद 90, उसके बाद 140। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले 30 मीटर, उसके बाद 70 मीटर, उसके बाद 50 मीटर और लास्ट में क्या हो गया? जीरो हो गया। और जीरो कब हुआ? जीरो when the initial point and final point is same। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछा अगर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से कौन सा जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? व्हेन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम। डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड और वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इधर से हम स्पीड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? स्पीड जो कि क्या है? डिस्टेंस अपन टाइम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम के इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम स्पीड बोलेंगे। और व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आता है देखो, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड भी क्या हो जाता है? स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके फॉर्मूला में जो आता है टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। सो इससे हमें क्या मालूम चल गया कि स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी में अगर देखते हैं तो टाइम इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स स्पीड का क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी and it is a velocity is a vector quantity. Next,
मैं थोड़ी देर पहले देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो अपन टाइम, विच विल बी जीरो। दैट मीन्स वेलोसिटी हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन हमने क्या देखा था, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो स्पीड कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी zero, but velocity can be zero. Understand? Next, अगर यूनिट देखें, we know that the SI unit of distance is meter and the SI unit of time is second. कोई भी फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। जैसे हमें स्पीड, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, पहले ये लिख देता हूँ, डिनोटेड बाय v। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं। अगेन वेलोसिटी को भी हम डिनोट करते हैं v से, दोनों को सेम v से डिनोटेड बाय v। तो अगर देखें स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट, स्पीड विच इज v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम को t से डिनोट करते हैं। अब हमें यूनिट किसका चाहिए, v का चाहिए, दैट मीन्स स्पीड का चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला क्या मिला है, डिस्टेंस अपन टाइम। तो फॉर्मूला से यूनिट कैसे निकालोगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज मीटर, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज सेकेंड। दैट मीन्स हमें यूनिट क्या मिल गया स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। अगर सेम चीज वेलोसिटी में देखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो यूनिट विल बी अगेन इन मीटर. So velocity, which is v, is equal to again displacement divided by time, and the unit of displacement is meter and the unit of time is second. So again the unit is meter per second. That means distance, sorry, speed और velocity दोनों का unit क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है, याद रखना। क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पर्सन वॉक्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। मतलब कोई भी एक पर्सन है जो ए से पहले कहा जाता है, बी तक जाता है और उसके बाद कहा जाता है ये सी तक आता है। व्हाट विल बी इट्स टोटल डिस्टेंस, ओके। What is total distance? It is the total path traveled by the object. तो ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल पाथ ट्रेवल किया, पहले कहाँ से कहाँ गया, ए से बी तक गया, दैट मीन्स 10 मीटर। उसके बाद गया ये बी से लेके सी तक, विच इज अगेन 12 मीटर, अगेन नॉट अगेन, इट इज 12 मीटर। सो ए से बी तक का डिस्टेंस हो गया 10 मीटर और उसके साथ जोड़ जाएगा हमारा बी से सी तक का डिस्टेंस, विच इज 12 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस विल बी 22 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। सो इधर इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा ए, क्योंकि ए से उसने जर्नी स्टार्ट किया था और उसने जर्नी एंड कहा क्या, एट द पॉइंट सी। और इन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब इसमें से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कौन सा साइड देगा, ये वाला रेड वाला साइड देगा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अब देखो थोड़ा सा अगर और से देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस एंगल इज, और एंगल बी इज 90 डिग्री। अब ये साइड और ये साइड हमें मालूम है, हमें चाहिए ये वाला साइड, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो। व्हाट वाज द पाइथागोरस थ्योरम, इट इज इट्स हाइपोथेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो
According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर, बेस कितना है 12 स्क्वेयर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, परपेंडिकुलर दैट मीन्स 10, 10 का स्क्वेयर. सो इधर से हमें एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर विल बी 144 प्लस 10 स्क्वेयर विल बी 100. सो हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 244, और इधर से हमें हाइट चाहिए, सॉरी हाइपोटेनस चाहिए, तो एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 244 मीटर. दिस विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्या ढूंढना है, नंबर सी में स्पीड. अब स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अब देखो डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल कर रहा था, ये 22 मीटर. सो स्पीड which is equal to distance divided by टाइम. अब इसमें तो टाइम दिया ही नहीं है. ओके, ज्यूम कर लेते हैं, मान लो ए से बी तक जाने में टाइम लगता है उसको 2 सेकेंड्स, एंड बी से सी तक जाने में लगता है मान लो 3 सेकेंड. तो इस केस में स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, स्पीड दैट इज v इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 22 मीटर, एंड द टाइम, टोटल टाइम विल बी, इधर ए से बी तक का टाइम लगता है कितना 2 सेकेंड, और बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगता है 3 सेकेंड. दैट मीन्स ए से सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम विल बी 2 + 3 दैट इज 5. सो ये कितना हो जाएगा, 5×4 = 20.4 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद डी नंबर में क्या निकालने दिया हमें, डिस्प्लेस सॉरी वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. Velocity is equal to displacement divided by टाइम. और डिस्प्लेस कितना कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, अंडर रूट 244, और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी इज अगेन 5 सेकेंड. तो इसको सोल्व करके जितना आता है वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. Our next topic is average speed and average velocity. Average speed क्या होता है, जैसे मान लो तुम घर से कहीं पिकनिक में घूमने जा रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, और तुम्हें मालूम है कि ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है मान लो. अब ऐसे जब तुम जर्नी स्टार्ट करोगे, एवरी पॉइंट में तुम्हारा जो स्पीड है वो सेम नहीं रहेगा. कहीं टर्निंग आएगा, मोड़ आएगा, कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम लगेगा, उधर तुम स्पीड डिक्रीज करोगे, अगेन तुम्हें हाईवे मिल गया तब तुम स्पीड इंक्रीज करोगे, है ना. तो तुम्हारा एवरी पोजीशन में या फिर एवरी पॉइंट पे तुम्हारा स्पीड सेम नहीं रहता. लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है, तुम्हारा तुमने जो मैक्सिमम स्पीड में गया और मिनिमम स्पीड जो होगा तुम्हारा, इन दोनों के बीच में एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कुछ नंबर है जिसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं. और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मतलब टोटल डिस्टेंस देखो, ए से तुम्हारे घर से ए बी पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस तुम्हें मालूम है कितना, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस विल बी 100 किलोमीटर. और तुमने टाइम देखा हुआ है, ऐसे बी तक पहुंचने में मान लो तुम्हें कितना टाइम लगा, 2 आवर्स लगा. तो टोटल टाइम विल बी 2 आवर. सो अब इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. सो 50 किलोमीटर पर आवर विल बी योर एवरेज स्पीड. अब ये एवरेज स्पीड जो है वो तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा जर्नी में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ही चले, कहीं भी तुम डिक्रीज किए, कहीं इंक्रीज किए, ऐसा हो सकता है. तो ये क्या होता है, एवरेज स्पीड कौन सा वैल्यू को दिखाता है, ये मिडिल में रहता है, टॉप और बटम के बीच में का कोई एक नंबर है और कोई एक डिजिट है जिसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं. नेक्स्ट अगेन एवरेज वेलोसिटी का भी सेम है.
which is equal to total displacement divided by total time. Our next topic is uniform motion and non-uniform motion. What is uniform motion? When an object travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. अब कैसा होता है देखो, जैसे मान लो एक कार है, वो फर्स्ट 0 सेकेंड में, मतलब इनिशियली एट टाइम 0 सेकेंड, उसका डिस्टेंस भी क्या होता है, 0 मीटर होता है। उसके बाद एक्स, उसके एक्स सेकेंड बाद मान लो आफ्टर 1 सेकेंड, और he travels a distance of say 2 meters. In another second or in next second, let us say 2 seconds में, फर्स्ट इनिशियली एट 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना था, 0 मीटर था। उसके बाद उसके 1 सेकेंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट सेकेंड में मतलब कितना हो जाएगा, तो टाइम 2 सेकेंड में मान लो ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 मीटर। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर ट्रेवल किया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में उसने अगेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इनिशियली एट 0 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, उसके बाद कितना गया, 4 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में दैट इज मान लो 3 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 6 मीटर। अगेन नेक्स्ट सेकंड में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। and in 4 second it travels 8 मीटर। इसमें भी कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। तो यही है यूनिफॉर्म मोशन। when an object travels equal distances, देखो डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल इधर कितना कितना है, इधर से इधर तक का 1 सेकेंड, इधर से भी 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड। तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए इक्वल इंटरवल में सेम सेम डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो उसके लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। हम वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम ले लेते हैं। अब डिस्टेंस इस ओ पॉइंट पे, ओरिजिन पे, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, 0,0। मतलब इधर टाइम भी 0 सेकेंड है और डिस्टेंस भी 0 मीटर है। अब ऊपर हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, मान लो ये 1 मीटर है, उसके बाद ये मान लो 2 मीटर, और डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मीटर, हम मीटर में ले। ये मान लो 3 है, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और टाइम भी ले लेते हैं इस तरह। ये मान लो 1 सेकेंड है, ये मान लो 2 सेकेंड है, ये मान लो 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। अब ग्राफ को देखो, at time is equal to 0 second, the distance was 0 मीटर। दैट मीन 0 सेकेंड में उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला 0 सेकेंड में 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 सेकेंड, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, विच इज दिस। 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स ये। तो अगर हम इसको देखें तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ आ रहा है, हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, द डिस्टेंस वाज 2 मीटर। इन 2 सेकेंड ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये क्लियर है। नेक्स्ट, इन 3 सेकेंड ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो ये 3 सेकेंड रहा,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 6 मीटर, ये 6, ये 3। ठीक है। इन 4 सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 8 मीटर, दैट मीन्स ये। अब ये जो हमारा ग्राफ बन, देखो ग्राफ का शेप कैसा हुआ। ये ओरिजिन था, उसके बाद इस पॉइंट पे आया, ये थोड़ा सा डैन हो गया। उसके बाद इस पॉइंट पे आया, उसके बाद इस पॉइंट पे आया, उसके बाद इस पॉइंट, देन दिस वन। अब ये मैंने खींच दिया स्ट्रेट लाइन। वैसे तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मैंने हाथ से ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। तो इसको हम अगर ज्वाइन करते हैं, सॉरी, ये क्या बन गया हमारा? स्ट्रेट लाइन। तो इससे हमें क्या पता चला? इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? यूनिफॉर्म मोशन का टेबल लिख लिया पहले। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं। और उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट को दिखा के अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा लाइन बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। So in uniform motion, distance time graph is always straight line. Non-uniform motion. What is non-uniform motion? When an object travels unequal distance in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform motion. अब अगेन हमने टेबल बना लिया। अब इसमें क्या होगा? इंटरवल, टाइम इंटरवल तो इक्वल रहेगा। जैसे मान लो ये इनिशियली 0 सेकेंड पे था, उसके बाद 1 सेकेंड, एंड देन 2 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट 3 सेकेंड, एंड 4 सेकेंड। अब इसमें टाइम इंटरवल सेम है, जैसे इधर से इधर तक कितना इंटरवल हो गया? 1 सेकेंड का। यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड। अब टाइम टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल सेम। लेकिन हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अनइक्वल होगा। जैसे मान लो इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज ट्रेवल्ड 0 मीटर डिस्टेंस, and in 1 second it travels 3 meter distance, and in next 1 second it travels 6 meter, and after that it travels 10 meter, and in 4 seconds it travels 15 meter. अब इसमें देखो, फर्स्ट 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड में भी कितना ट्रेवल कर रहा है? 3 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। लेकिन in 3 seconds or in another second he travels 4 meter distance. After that he travels 5 meter distance. अब देखो इधर जो डिस्टेंस है उसका इंटरवल सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इस अनइक्वल। पहले दो में क्या रहा हमारा? 3 मीटर 3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर डिस्टेंस किया। This is our non-uniform motion. When an object travels unequal distances in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform motion.